Namaste, bhai और बहनों. There are two things which I would like to point out in this video. One is that the war has been triggered by the United States and Israel against Iran. But the effects are not being felt as much in the United States. There is some increase in the gas prices at the gas station, but the bigger impact is being felt in the West Asian economies, nations in Asia particularly. So we have an energy emergency being declared in a couple of countries now, and countries like Thailand have asked the citizens to use the stairs instead of the elevators, just to conserve the energy. And there's a lot of concern even in countries like India about gas cylinders, and some restaurants have presumably closed down. So the effects are not being felt in the countries which have triggered or from where the entire attack started. The Asian nations have started bearing the brunt. Also, among the people that are bearing the brunt are the air travelers, because the airlines have jacked up the flight prices as they have to traverse longer routes to get to the same destination. So all this is going to add to inflation, and this is not in the interest of any country. Inflation is not healthy, and I hope this turns out to be transient, the increase in oil prices, but for the time being many people are going to get impacted, and it's not a very great sign. Oil, which was languishing for such a long period of time, has also broken out. It was in the 60 to 70 range. Now it's over $110. So naturally, air aviation fuel prices have gone up, and therefore naturally the air prices, people who have to travel for many reasons, are getting impacted. All this is going to lead to higher interest rates across the world. At least reduction of interest rates will become difficult now. Higher interest rates always adds to the cost of business. Add to the cost of business, therefore the margins will come down and stock valuations can get impacted. That's one part. Another point that I want to make in this video is SIP as a method of investment. I mentioned that there's nothing wrong in investing in the mutual funds, but you should do it at the right time. SIP is not the best method because of times like this. For several months you're seeing the market fall down. Every time you invest, next month you are investing, you are getting a lower NAV. So how does it help you? Instead, if you had waited for the bottom and invested a lump sum at that time, would have been much better. You can invest in mutual funds. They give you diversification, and that's a very good blessing. Many are not able to do diversification on their own, and you have professional fund managers who will do it for you. So that's perfectly fine. But let all this come at some type of understanding that you cannot just go and invest without thinking on the first of every month from your salary check. It is good in times when the markets are going up, but in times like this when the markets have come down, it's a very sorry thing. There are two more points. Third point, there is some talk about, there are some politicians who are mentioning that the investors are getting hurt. Okay. And I think one of them is Raghav Chadha. He was talking about how STT can be reduced. But that is for the future, right? Mr. Chadha should commend his good thinking, but that is for the future. The problem is that आज के टाइम पे इन्वेस्टर्स को बहुत दर्द हो रहा है, उनके पोर्टफोलियो डाउन है. तो आप जब एसटीटी अगर इंट्रोड्यूस भी कटौती कर भी रहे हो, तो आप अप्रैल मई में करोगे तो बात की बात हुई. आज आप इनकम टैक्स के रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कुछ जाके एक इमरजेंसी स्टेप लेना चाहिए. कैपिटल गेन्स टैक्स को कुछ कम कर दें. राघव चड्ढा जी बहुत लर्नेड है और कह रहे हैं कि
कैरी फॉरवर्ड लॉस 8 से 12 साल कर सकते हैं। लेकिन वो भी बात हुई ना। आज आपके जो पॉकेट में जो वेल्थ इफेक्ट इम्पैक्ट हुआ है, जो वेल्थ लोगों की चली गई है, उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब आप जाके अमेरिका जैसे तो पैसे नहीं हैं कि वहाँ पे तो जाके कोविड टाइम में लोगों ने पॉकेट में भी पैसे डाल दिए थे। अब ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते, इतना तो पैसा भारतीय गवर्नमेंट को है नहीं। ऑयल के जो एक्साइज कट किए वही बहुत बड़ी बात है, ऑयल को मेंटेन करें वही स्थिति के लिए एक बहुत बड़ी बात है। फॉरेक्स स्पेकुलेशन को कर्ब करने के लिए आरबीआई ने अच्छा मूव कर निकाला कल, $200 मिलियन को कैप करके, वो बहुत अच्छा मूव था। लेकिन अब आके क्या करेंगे? जो लोगों को जो टैक्स भरने आ रही है, जो उनको वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनके पोर्टफोलियो जो कम हो गए हैं, अब उसके बारे में क्या गवर्नमेंट कर सकती है जो तुरंत कोई राहत दे सके? एक तो बात है कि जो FIIs का मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी 17 महीने से वो निकालते जा रहे हैं पैसे भारतीय मार्केट से। अब प्रेशर बढ़ गया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, जैसे मैंने कहा। तो ये जो FIIs के इतने पैसे निकलते जा रहे हैं भारतीय इकोनॉमी में, वो कष्टदायी है। एक एग्जेम्पशन या उनके अगर कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स को रिड्यूस किया जाए, ये एक टेम्पररी मूव है, सिचुएशन बहुत गंभीर है, और कुछ उनको एक राहत दी जाए ताकि वो पैसे निकाले नहीं, वापस ले आए। ये एक बहुत हेल्पफुल स्टेप हो सकता है मेरे हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव स्टेप हो सकता है, और एक इमरजेंसी में शायद करना भी चाहिए ताकि वो पैसे जो निकालते जा रहे हैं, रुपया गिरते जा रहा है। 94 आज आप लेने जाओगे तो टैक्सेस वगैरह के साथ आप 95 से ज़्यादा पे खरीदोगे। सेंचुरी के करीब पहुंचते जा रहा है रुपया, बहुत मुश्किल है। सभी लोग क्रिकेटर तो नहीं है कि जो पैसे दबा के बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। आज मिडिल क्लास का काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सब क्रिकेटर होते तो बहुत पैसे बन जाते, लेकिन है नहीं। ठीक है, हाँ, IPL शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से आज, राइट। उनको तो उनके पास काफ़ी कोई धन की वर्षा ही है, मेहनत भी है लेकिन वर्षा भी है। तो आज ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को, आम इन्वेस्टर को कुछ ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले ले कि सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट भी ऊपर आ जाए, FIIs की सेलिंग कुछ कम हो जाए। तो ये स्टेप्स बहुत इमरजेंसी में लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं खुद एक रिकमेंडेशन भेज रहा हूँ, और मैं दिल्ली में भी जाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट हफ्ते में, और ये रिक्वेस्ट करूँगा वित्त मंत्री से कि ये कुछ इमीडिएट स्टेप्स उठाए जाए। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक वेल्थ इफेक्ट हो जाएगा। लोग कि अगर पोर्टफोलियोज गिरते गए तो वो चीज़ों को भी कम खरीदेंगे तो इकोनॉमी को इम्पैक्ट, डिमांड साइड भी स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने कुछ उसका चिन्ह जो है रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखा है। इसलिए मैं लोग कहता हूँ सिप एज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल सही नहीं, वो नहीं करिए। आप एक लमसम में जब हम आपको प्रोफेशनली बता रहे हैं कि ये बॉटम आ रहा है, तो उस वक्त आप इन्वेस्ट करिए और पैसे बनाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, और फाइनल जो कहना था कि ये हमेशा मार्केट थोड़ा पेन है। आज हाउथीज़ ने भी अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और दूसरा यूक्रेन का कुछ मेरे ख्याल से एंटी ड्रोन डेपो पे भी अटैक हुआ है। तो ये क्या है, दूसरे देश भी अभी इन्वॉल्व होने शुरू हो गए हैं। आप लोगों को एज एन इन्वेस्टर एक मौके मिलते जाएंगे जहाँ पे मार्केट कुछ सुधरेगा। उस वक्त जो है सेल ऑन राइज शायद आपको करना होगा। अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेरे हिसाब से टाइम नहीं आया। कई लोग और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप निबल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा ये निबल का टाइम है। अभी भी आपको कॉशियस रहना होगा। लेकिन जिनके पोर्टफोलियोज बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो उनके लिए ये सलाह रहेगी कि जब मार्केट ऊपर आएगा, और आना ही है, मार्केट दो साइड में चलता है, हमेशा सिर्फ गिरता नहीं है, ऊपर भी आता है, तभी तो इसका नाम मार्केट कहा जाता है। ठीक है, उस वक्त जो है आप अपने पोर्टफोलियोज को देके धीरे धीरे करके कुछ स्टॉक्स जो आपके नहीं चल रहे हैं, जो इस वातावरण में नहीं चलेंगे, तो उसको आप खाली कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे किसी भी ग्रुप 1 मंथ का प्रेडिक्शन, 15 दिन का प्रीमियम प्लस वगैरह के लिए 9820861044 इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप करें, शांत से ट्रेड करें। और फ्राइडे को भी डाउ, S&P, नैस्डैक नेगेटिव रहे,
ऑयल का कीमत, कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही है। गोल्ड सिल्वर इस वक्त बहुत वॉलेटाइल है, स्टेडी नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी हर वक्त कमोडिटीज़ पैकेज में अच्छे कुछ मेटल्स कमोडिटीज़ भी निकाल के देते जा रहे हैं। ये सभी के लिए आप संपर्क करके हमारा कोई भी पैकेज ज्वाइन करें। नमस्ते और खुश रहे एंड डू गुड डीड्स। ये जो वक्त है, जो शनि का प्रबोध रहेगा, जो अच्छे कार्य करेगा उसको वो बच जाएगा। अगर आप किसी को चीट करें, किसी से गलत पैसे ले लोगे तो फंस जाओगे। नमस्ते।